Dear students, myself Dr. Dipti Srivastava, Associate Professor in Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on adaptive radiation in reptiles. Adaptive radiation. Because of the competition for food and living space, a single ancestral species evolves into different forms which occupy different habitats. This is called adaptive radiation or divergent evolution. Perhaps reptiles have shown the greatest evolutionary diversity and adaptive radiation of all vertebrate groups. Their adaptive radiation took place twice, first in the Paleozoic and secondly in the Mesozoic. भोजन और आवास के लिए प्रतियोगिता के कारण एक अकेली पूर्वजीय जाति विभिन्न रूपों में विकसित होती है जो भिन्न भिन्न आवासों पर अधिकार करते हैं। इसे अनुकूली विकिरण अडेप्टिव रेडिएशन या अपसारी विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। संभवतः सब कशेरुकी समूहों में रेप्टाइल्स ने सर्वाधिक विकासीय विविधता और अनुकूली विकिरण प्रदर्शित किया है। उनका अडेप्टिव रेडिएशन दो बार, पहले पैलियोज़ोइक तथा दूसरा मीज़ोज़ोइक ईरा में हुआ। Paleozoic radiation. During Paleozoic, with no serious competitors on land, the ancestral reptiles or cotylosaurs multiplied rapidly, occupying all ecological niches available to them. Their radiation involved adaptations to different methods of locomotion and feeding. Distinct anapsid and synapsid forms dominated. Paleozoic radiation में भूमि पर गंभीर प्रतियोगियों के न होने से पूर्वज रेप्टाइल्स या कॉटिलोसोर्स ने समस्त उपलब्ध इकोलॉजिकल नीचेस का अधिग्रहण करने के लिए तीव्रता से संख्या में वृद्धि की। उनके विकिरण में प्रचलन या लोकोमोशन और फीडिंग को विभिन्न विधियों का अनुकूलन था। स्पष्ट एनाप्सिड और सिनेप्सिड रूपों का डोमिनेंस या आधिपत्य था। Mesozoic radiation. By the end of Paleozoic, the ancestral Cotylosaurus had disappeared, but their descendants produced a second and bigger radiation during Mesozoic. They dominated not only the land but also the sea and the air throughout the Mesozoic era, which is truly called the Age of Reptiles. पैलियोज़ोइक ईरा के समाप्ति पर एंसेस्ट्रल कॉटिलोसोर्स लुप्त हो गए, परंतु उनकी संतति ने मीज़ोज़ोइक ईरा में दूसरा और उससे भी बड़ा विकिरण उत्पन्न किया। मीज़ोज़ोइक ईरा पर्यंत उनका न केवल भूमि पर आधिपत्य रहा बल्कि समुद्र और वायु में भी रहा। अतः यह ईरा एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है। दे लास्टेड ओवर ए ग्रेट स्पान ऑफ टाइम अबाउट 130 million years. By comparison, man is no older than 2 to 4 million years. वे एक लंबी कालावधि लगभग
13 करोड़ वर्ष तक बने रहे। इसकी तुलना में मनुष्य 20 से 40 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। The extinct Mesozoic reptiles are represented by as many as 16 orders. लुप्त Mesozoic reptiles 16 ज्ञात ऑर्डर्स द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। Of these, 1 lead to the birds, 1 to the mammals and 4 to the modern reptiles. इनमें से एक ने पक्षियों, एक ने मैमल्स या स्तनधारियों और 4 ने आधुनिक रेप्टाइल्स को उत्पन्न किया। With the advent of Cenozoic era, the vast hordes of the Mesozoic reptiles disappeared, leaving behind the representatives of only 4 living orders. सीनोज़ोइक ईरा के शुरू होने पर मीज़ोज़ोइक रेप्टाइल्स के विशाल समूह केवल 4 जीवित ऑर्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को छोड़कर लुप्त हो गए। Anapsid line. The modern Chelonia, that is turtles and tortoises, represent a direct and an early offshoot of cotylosaurs retaining anapsid skull. They have remained virtually unchanged since Triassic, some 160 million years ago. एनाप्सिड लाइन या एनाप्सिड वंश आधुनिक चिलोनिया, जिसके अंतर्गत टर्टल्स और टॉर्टोइज आते हैं, ये कॉटिलोसॉर्स की एक प्रत्यक्ष और आरंभिक प्रशाखा को निरूपित करते हैं। वे गत 160 मिलियन ईयर से ट्रायसिक काल से यथार्थ रूप से अपरिवर्तित रहे हैं, यानी कि उनमें अभी शुरू से लेकर अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेकंड, सिनेप्सिड लाइन. The mammal-like reptiles or Synapsida had a single temporal cavity in skull, ventral to postorbital and squamosal. स्तनधारी समान रेप्टाइल्स या सिनेप्सिडा के स्कल में पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल के वेंट्रल साइड पर एक अकेली टेम्पोरल कैविटी होती थी। अर्ली पेलिकोसोरिया और थीरोमॉर्फा वर सिमिलर टू कॉटिलोसोर्स। आरंभिक पेलिकोसोरिया या थीरोमॉर्फा कॉटिलोसोर्स के समान थे। लेटर थेरेप्सिडा with differentiated dentition and improved locomotion were more mammal-like. विभेदित दंत विन्यास और इम्प्रूव्ड लोकोमोशन सहित अधिक स्तनधारी समान थे।
Before disappearing in Jurassic, they gave rise to ancestral mammals. जुरैसिक काल में लुप्त होने के पहले उन्होंने पूर्वज मैमल्स को उत्पन्न किया। यूरेप्सिड लाइन। The Eurapsids or Plesiosaurus had a single temporal fossa in skull above the joint of postorbital and squamosal. They were large, marine, turtle-like, heavy-bodied and long-necked creatures. They were obviously fish eaters. All became extinct towards the end of Cretaceous. यूरेप्सिड्स या प्लीसियोसोरस की करोटिया स्कल में पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल के जॉइंट के ऊपर अकेला टेम्पोरल फोसा था। वे बड़े समुद्री टर्टल समान हैवी बॉडीड और लंबी ग्रीवा वाले या गर्दन वाले जीव थे। वे प्रत्यक्ष रूप से मछली खाने वाले थे। क्रिटेशियस कल्प या पीरियड के अंत तक वे सब लुप्त हो गए। नेक्स्ट, पैराप्सिड लाइन। देयर वाज अनदर मेराइन ब्लाइंड एली लाइक यूरेप्सिडा रिप्रेजेंटेड बाय फिश लाइक और porpoise like ichthyosaurs. They became extinct near the close of Mesozoic era. यूरिप्सिडा की भांति एक अन्य समुद्री अंध या ब्लाइंड शाखा थी जो मछली समान या इक्थियोसोर्स द्वारा निरूपित थी। वे भी मध्यजीवी या मीजोजोइक ईरा के अंत के पास लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। डायप्सिड लाइन। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स आर डायप्सिड with two temporal openings on either side of skull separated by squamosal and postorbital bones. स्कल के दोनों ओर स्क्वामोजल और पोस्ट ऑर्बिटल बोन्स द्वारा सेपरेटेड दो टेम्पोरल ओपनिंग्स सहित आजकल के अधिकतर रेप्टाइल्स डायप्सिड हैं। The earliest diapsids divided into two branches, Lepidosauria and Archosauria. सबसे आरंभिक डायप्सिड रेप्टाइल्स दो शाखाओं लेपिडोसोरिया और आर्कोसोरिया में विभाजित थे। The Lepidosauria were probably ancestral to modern squamata, that is snakes and lizards, and Rhynchocephalia, that is sphinodon. Lepidosauria संभवतः आधुनिक स्क्वैमेटा यानी सर्पों और छिपकलियों और रिन्कोसिफेलिया अर्थात स्फिनोडोन के पूर्वज थे। The Archosaurus were the ruling reptiles
dominating the Mesozoic era. आर्कोसोरिया मीजोजोइक इरा के डोमिनेंट रूलिंग रेप्टाइल्स थे, यानी कि प्रधान सरीसृप, रूल करने वाले, राज करने वाले सरीसृप या रेप्टाइल्स. They represented the extinct Pterosauria, the extinct dinosaurs, and the modern crocodilia. वे लुप्त टेरोसोरिया, लुप्त डायनासोर्स तथा आधुनिक क्रोकोडीलिया का प्रतिनिधित्व करते थे. They also gave rise to the modern birds. उन्होंने आधुनिक पक्षियों को भी उत्पन्न किया. Pterosaura. The extinct flying reptiles called Pterosauria or Pterodactyla were of light build. Their forelimbs evolved into membranous wings or patagia. टेरोसोरिया या टेरोडेक्टाइला नामक लुप्त उड़ने वाले रेप्टाइल्स हल्की बनावट के थे. उनकी फोर लिम्स मेम्ब्रेनस विंग्स या पैटेजिया में विकसित हो गए थे. फर्स्ट 3 fingers were short, hooked and probably used for clinging to rocks. प्रथम 3 उंगलियां छोटी और नखरयुक्त थीं और संभवतः चट्टानों से चिपकने के काम आती थीं. Fourth finger was greatly elongated to support the edge of patagium. चौथी उंगली या पैटेजियम के किनारे को सहारा देने के लिए बहुत लंबी हो गई थी. फिफ्थ फिंगर वाज लॉस्ट. पांचवी उंगली समाप्त हो चुकी थी. Rhamphorhynchus of late Jurassic was a primitive pterosaur with a 1 meter wingspan, a long branching tail and toothed jaws. Rhamphorhynchus 1 मीटर विंगस्पान या विंग विस्तार, एक लंबी बैलेंसिंग टेल या पूंछ और दांतदार जबड़ों सहित एक आद्य टेरोसर था. Its huge, bony and toothless beak was balanced by a backward bony projection of head. Pterodont of Cretaceous had a 9 meter wingspan but no tail. क्रिटेशियस ईरा के टेरोनोडॉन का पंख विस्तार 9 मीटर था परंतु पूंछ नहीं थी. इसकी विशाल हॉर्नी और टूथलेस बीक सिर के पीछे की ओर के बोनी प्रोजेक्शन द्वारा संतुलित होती थी. Dinosaurs. At the end of Triassic, Thecodontia or Pseudosauria, the early descendants of
Archosaurus gave rise to the most fantastic Mesozoic reptiles, the dinosaurs, which means terrible lizards. Greek word dinos means terrible, saurius means lizard. ट्रायसिक ईरा के अंत में आर्कोसोरिया के आरंभिक वंशजों थीकोडोंटिया या सूडोसुकिया ने सर्वाधिक विलक्षण मध्यजीवी या मीजोजोइक रेप्टाइल्स डायनासोर्स को जन्म दिया। डायनासोर्स का अर्थ भयंकर छिपकलियों से है। ग्रीक वर्ड डायनोस का मतलब टेरेबल, भयंकर, और सोरस मीन्स लिजार्ड या छिपकली। They subdivided early into two orders, Saurischia and Ornithischia, depending on the structure of their pelvis. वे आरंभ में दो ऑर्डर्स सॉरिस्चिया तथा ऑर्निथिस्किया में बट गए जो उनकी पेल्विस की संरचना पर निर्भर थे। After thriving and dominating the earth for 130 million years, the great dinosaurs and their contemporaries became suddenly extinct by the end of Cretaceous period. एक 130 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर राज करने के बाद डायनासोर्स तथा उनके कॉन्टेम्पोररीज अचानक क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक लुप्त हो गए। ये देखिए ये फिगर अलग अलग रेप्टाइल्स के बारे में बता रही है। एक पेलिकोसोर जो कि सिनेप्सिड है, फिर एक थेरेप्सिड सिनेप्सिड है, फिर ये प्लीसियोसोर यूरिप्सिड, इक्थियोसोर, पैरेप्सिड, उसके बाद टीरोसोर और ये भी टीरोसोर टेरेनोडोन। तो आज हमने रेप्टाइल्स के अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।